Assalamu alaikum, Sakana. Thank you so much for joining the session. It's a very long waited session, and I'm pretty much sure over this session we will be discussing a lot of about business, about women in Pakistan, and different things. So before we start the session, I would be happy if you can introduce yourself to the audience, and then we'll start the session. Thank you so much, firstly, for having me here. And as you said, it has been my apologies that you had to postpone No because of problem. me No earlier. problem. No problem. But But I'm I think really, really happy. I think there are a lot of things going on, but I'm happy that we are doing it right now. So I'm very happy to be here. so So, first of all, before you introduce yourself, I want to say thank you so much whatever you are doing because आई थिंक मेरे पूरे के पूरे कनेक्शन में शायद एक वाहिद आप हैं जो जो बिजनेस कह रही हूँ बिल्कुल अलग तरीके से कह रही हैं क्योंकि yeah, whenever I talk to anyone and whenever I talk to anyone about कि यार कोई बिजनेस स्टार्ट करना है लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक यार चलो खाने का कुछ yeah. खोलते हैं एंड पाकिस्तान में स्पेसिफिकली इट्स मोर रिलेटेड टू फूड या कपड़ों का कुछ करना चाहते हैं या इस तरीके की Yeah. कुछ सो लाइक how this idea happens. So मैं पहले आपके इस दूसरे सवाल का जवाब देती हूँ and then I'll introduce Sure. myself. So I think जब आपके end goals different हो तो I think आप काम different तरीके से करते हैं. My end goal was never about making money. I've been told that I have a very bad business acumen. I am more of a creative person, or I've been told a number of times that I run it like an NGO or a charity, and I don't understand कि profit कैसे बनाना चाहिए, and that's why maybe we were a little slow in scaling. But Alhamdulillah, I am very happy where I am right now in life. मेरा नाम जैसे कि आपने बताया, I'm Sukiana Abbas, and I am the CEO of a jewelry brand called Enchante, which is a silver jewelry brand based in Pakistan, where we design, manufacture, and sell jewelry and accessories made in silver using authentic gemstones. The focus is on reviving our local arts and crafts, especially in terms of the local jewelry industry, and try to give a new lease of life to the dying artisans who are losing out to more commercial market. By degree, I am a computer science graduate from FAST NUSES, but I was a homemaker by choice. And I did not have any aspirations. बचपन से कोई शौक नहीं था कि मैंने jewelry designer बनना है या मैंने कुछ ऐसा काम करना है. I think it was destiny. I firmly believe that now, having given up a lucrative tech career and doing what I do, which is way more satisfying, I believe that this was my destiny and I was supposed to be here and do what I'm doing. Perfect. Um, I think पहला topic यही होगा मेरा. So let's start from the very beginning. So when I was going through your profile and uh, because sometimes you see कि ठीक है यार चलो अगर ये इंसान ये चीज कह रहा है तो या तो इसके मॉम एंड डैड ये करते थे या इसकी फैमिली बिजनेस इस तरीके से था. But when I was going through your profile, then I see that you have done your graduation in computer sciences. yeah. What you're doing right now, आई थिंक वो कंप्यूटर साइंस के आस पास भी नहीं है बिल्कुल भी मतलब not even No, single thing no, include in that. So let's start no. from the very beginning because it's not only this conversation is not only about discussing how you get into that business. We need to also understand Yeah. that you graduated in I think 1990s, so it's been more than 25 years more than 99, yeah. so it's been more than 25 years now. So now you have seen a Yeah. lot of things. What I personally Yeah. believe कि I also covered few topics about कि यार लोग कहते हैं Gen Zs बड़े अलग हैं, लोग कहते हैं millennials बड़े Yeah. अलग हैं. And what I personally believe, the people who are graduating before 2000s, they are very Hmm. subtle. They are doing something, but they are doing one thing at a time for a longer time, and they know okay, Yeah. how to reach it. So बिल्कुल. यू ग्रेजुएटेड इन कंप्यूटर साइंसेस ठीक है तो सबसे पहले मुझे ये Yeah. बताइएगा क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि हम जिस चीज के अंदर ग्रेजुएट हो रहे हैं ना हमें जिंदगी भर वही करना है दैट्स वन ऑफ द वेरी बेसिक थिंग जो कि मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ और मुझे ऐसा लगता Yeah. है कि अब स्टूडेंट्स का ये फेयर है क्योंकि Hmm.
कहीं ना कहीं हम हमारी करियर काउंसलिंग होती है नहीं एज सच, ठीक Yeah. है। और हमें पता होता नहीं है कि हमारे लिए बेसिकली सही क्या है। हमें ये Mm. पता होता है कि ओके Mm. फाइन, हमारे किसी मामा चाचा के बेटे ने ये करा है, and Mm. we do that thing, ठीक है। So Yeah. over that time, why did you choose computer sciences? Are you something that you wanted to pursue your career into computer sciences? Yeah, what were the circumstances? I just wanted to know because I'm pretty much sure कि whatever your business right now, it's not something कि आप एक दिन उठे और आपने सोचा कि नहीं यार let's start Yeah. something. So Yeah. let's see how's the story look like, and then we'll see. Okay, perfect. So if I start from the very beginning, I enrolled in a computer science degree at a time where it was that it was very new and very nascent. It was I think it was just starting off, and not many people knew कि आप computer science में भी undergrad कर सकते हैं. I had initially applied for IBA, the business school, to do my MBA because, as you just said, कि uh, unfortunately herd mentality होती है, and there's also a lot of peer pressure and family pressure to pursue traditional careers. लड़कियां हैं तो your choice is much more limited as compared to men and boys. आपने या तो डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बहुत से बहुत आर्ट्स में चले गए, अगर आप फाइन आर्ट्स आपने कर लिया, लॉयर बन गए, and there are some restricted fields जिसमें खवातीन दाखिल होती हैं. Mm, I was always a very, very passionate science student. I have this knack, uh, and a passion for perpetual learning. So because I did not get into IBA, I was for sure interested in doing a science degree. और जब मेरा एडमिशन फास्ट में हुआ, उस जमाने में it was called fast ICS, अब ये न्यूसिस हो गया है. So I was very delighted, and I had planned initially to pursue my master's as well. Uh, and you have those dreams and ambitions at that very young point in your age कि आप करियर के भी ख्वाब देखते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के ख्वाब देखते हैं, and then life has its own plans. So I got married right after my graduation, and because of that, at that point in time, I believed that I would not be able to do justice to both my home and my career. So I chose to be a homemaker, and I wanted to raise my own kids and not do a 9 to 5 job at that time. Actually, इसका थोड़ा सा influence यूँ भी आता है कि हमारे यहाँ at that अब तो बहुत things have changed. There's a lot of there's a lot of awareness about women empowerment. There's a lot of awareness about खवातीन की financial inclusion. And it's not just कि आप काम करें because you need money. You need to work because it is a part of you that that you need to complete as your own identity. You do different roles. आप mother भी हैं, wife भी हैं, daughter, sister भी हैं, सब कुछ है. But you are also a human being, right? And you have your own identity. You have your own aspirations. Unfortunately, I think when I graduated at that point in time, जो हमसे पहले की generation थी, they were all homemakers, and we were all conditioned to believe कि the only success that a woman has is if she runs a home very very smoothly, and she's a good homemaker. बहुत ज़्यादा encourage नहीं किया जाता था खवातीन को to adopt careers and to take up a 9 to 5, unless and until God forbid you needed to do that. So it's very refreshing to see that change of mindset. Nowadays, we all talk about equality in terms of education, in terms of career, but I think back then there was certain conditioning, which is part of a patriarchal society that we are, and I think I was also influenced by that. but don't you think um, it's it's a bit different because what I see ke early 2000, yeah, late 90s में the economical situation is very different. Yeah, um, at that time I'm pretty much sure uh, हर बंदे को काम करना इतना जरूरी था भी नहीं. बिल्कुल सही कह रहे Now हैं, what I see is बिल्कुल कि सही. मैं कहीं पे बिल्कुल इसमें वो नहीं कहता कि yes, everyone should work if they wanted to. There are a lot Yeah, of people, there are a lot of women, they just want to become a housewife, and that's also a yeah, good thing because it's a very big responsibility. yeah. But at the same time, what I personally believe throughout this 20-25 years, Pakistan changed very differently. What I बिल्कुल. see is कि early 2000.
हमें हमें ऐसा लगता था कि यार एक बंदा कमा रहा है तो आई थिंक पूरा घर चल सकता था। या बट बिल्कुल नाउ डेज थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। नाउ बहुत मुश्किल है कि अगर कोई एक बंदा कमा रहा हो तो बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल चलें, क्योंकि अगर मैं नॉर्मली घर की बात करूं जहाँ पे दो तीन बच्चे हैं और अगर वो प्राइवेट या सेक्टर भी जा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में, इट्स अ लॉट ऑफ मनी। सो आई थिंक या दैट्स आल्सो वन ऑफ द मेन रीजन जहाँ पे ये चीज़ चेंज आ गई है। यस, बिल्कुल। everyone needs to understand that moving forward, so you choose to become So an out. Yeah. just to add to that, so this is where the next step of my story comes in. Uh, the reason, you know, that whole shift from a computer science degree and a field to jewelry designing का कोई connection बाहर नहीं नजर आता, but I went through a very life altering incident, which led me to rethink about all of this. कि अगर मुझ पे घर की financial responsibility आ जाती, I was not, I had not pursued my own field, and would I have been able to take care and take up that financial responsibility, right? So that being in that position, being in that trauma, it kind of opened, you know, my mind to a lot of things that I had not previously considered, because आप एक privilege के शायद lens से देख रहे होते हैं चीजों को. And because at that point in time, this I'm talking about 2013, 2014, Karachi was a very volatile city. So uh, ज्यादातर खवातीन की जो गोल्ड ज्वेलरी होती थी ना, वो लॉकर में लॉक्ड अप होती थी, इनफैक्ट अभी भी होती है. So living in Karachi, you know hardly वो सब पेरेंट्स बड़े शौक से ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं बेटियों को on their weddings, and you're expected to wear them. Apart from a few close family gatherings, आप शायद वो सारा वक्त लॉकर में बंद रहता है. So I actually was looking for substitutes to wear in silver in the local market, and I did not find anything to my taste. एंड कुछ ये वाला फेज भी चल रहा था जहाँ मैं एक हादसे से ओवरकम करना चाह रही थी हमारी फैमिली, एंड आई वाज ट्राइंग टू लुक फॉर समथिंग पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक्टिविटी, एंड आई वाज लाइक, यू नो, अगर मुझे कोई चीज़ मिल नहीं रही तो व्हाई नॉट आई मेक समथिंग फॉर माई सेल्फ. आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोन्स. सो दैट इज हाउ एक्चुअली Enchante took place and it started off. परफेक्ट। मतलब किसी ना किसी रीजन की वजह से आपको जरूर आपको लगा कि यार इफ दिस इज समथिंग दैट आई एम फेसिंग, तो आई थिंक आई एम प्रीटी मच श्योर लॉट ऑफ पीपल आर Yeah, फेसिंग दैट। yeah, व्हाट आई वांटेड टू नो कि टेल मी अबाउट योर बिजनेस, लाइक व्हाट आई सी अ लॉट ऑफ people who are doing this jewelry business, they are somewhat kind of middleman. They are picking jewelry from bigger markets and try to yeah. sell online. What I personally believe कि हमारे यहाँ ऑनलाइन का थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा अलग है। हमने ऑनलाइन Mm, को ना बेसिकली एज अ रिटेल शॉप कर दिया है। आप किसी भी mm, ऑनलाइन बिजनेस पे देख रहे होते हैं, इट्स मोर लाइकली yeah, पीपल आर बाइंग समथिंग फ्रॉम उर्दू बाजार या सदर या कहीं पे yeah, जो मेन मार्केट्स हैं वहां से खरीद रहे हैं, पुट सम मार्जिन ऑन इट एंड ऑनलाइन उसको बेच रहे हैं। yeah. So why do you think getting a degree on this? Why do you think studying this very closely is important? ठीक है, because I'm pretty much sure Mm, when you're just for my information, it's a proper online business, right? Or do you have a yeah. okay? नहीं नहीं, it So is a proper what I online personally business. believe कि पाकिस्तान में अभी भी ना अगर मैं ये कहूँ कि लोगों का ना एक ब्रांड के लिए मोहब्बत या एक ब्रांड के लिए जो लगन है ना वो थोड़ा कम है। दे मोर लाइकली कि Mm, ठीक है आज अगर आप डिस्काउंट दे रही हैं इट्स गुड टू गो, कल कोई और yeah, डिस्काउंट देगा एंड दे मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल, ठीक है। सो बिल्कुल. इतना इतना कुछ होगा, आई एम प्रीटी मश्योर कि आपने इन सारी चीज़ों को देखा होगा। बट व्हाई डू यू थिंक डूइंग अ डिग्री, डूइंग एन एजुकेशन इन स्पेसिफिकली दिस gems and all, it's important? देखिए मेरा इसमें एक पर्सनल बिलीव आ जाता है, विच इज दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ, कोई भी चीज़ आप परस्यू करें, यू नो, आपका कोई स्टार्टअप है या आप कहीं किसी फर्म में जॉब करते हैं या आप कोई करियर परस्यू करें, तो इट्स ऑलवेज, आई ऑलवेज बिलीव एटलीस्ट कि आपको उसको अपना 100% देना चाहिए, राइट? एंड देन जैसे मैंने इनिशियली मेंशन किया कि आपके लॉन्ग टर्म विजन या आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है.
सो मोस्ट ऑफ दीज पीपल जिसकी आप बात करें, आई थिंक दे आर लुकिंग टू मेक इजी मनी. They think because e-commerce finally took off in Pakistan after a lot of lag globally, तो Amazon and everything was in place. हमारे यहाँ e-commerce थोड़ा सा slow आया है, and when it did, it boomed, especially during COVID. So people found it easy to buy in bulk, invest in inventory और उसको फिर resell कर दें. प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है कि जब आप इस तरह से ज्वेलरी के बारे में स्पेसिफिकली अगर हम बात करें, मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स या मोस्ट ऑफ द आई वुड से सब स्टैंडर्ड डिजाइन या प्रोडक्ट्स या मार्केट जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ से चीपर प्रोडक्ट्स लेके और रीसेल करना इज नॉट द सोल्यूशन फॉर ग्रोथ ऑफ अ लोकल इंडस्ट्री, राइट? पाकिस्तान का जो ज्वेलरी सेक्टर है एंड जेमस्टोन सेक्टर अगर उसमें मैं शामिल करूँ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड सेक्टर्स ऑफ द कंट्री. जबकि इट इज़ द मोस्ट, पाकिस्तान इज़ द मोस्ट रिसोर्सफुल कंट्री जेमस्टोन्स के हवाले से. हमारे मुल्क में जितनी वैरायटी पत्थरों की पाई जाती है और जो एक्सपोर्ट की जाती है, शायद मेरे ख्याल से एक आम पाकिस्तानी को तो उसके बारे में मालूम ही नहीं हो. सो व्हेन आई स्टार्टेड एंड आई डिसाइडेड कि जी मैंने ये काम करना है, मैंने अपने शौक से शुरू किया, तो मुझे भी ये हुआ कि बिकॉज दिस वाज नॉट माय फील्ड. मैं तो कंप्यूटर साइंस की ग्रेजुएट हूँ, और अगर मैं कोई चीज़ बना के दे रही हूँ आगे और मैं ये क्लेम कर रही हूँ कि जी मेरा आई एम मेकिंग यूजिंग ऑथेंटिक स्टोन्स या मैं रियल स्टोन्स यूज कर रही हूँ, तो मुझे खुद कैसे पता होगा? हो सकता है कि जहाँ से मैं सप्लाई ले रही हूँ इन द सप्लाई चेन somebody इज चीटिंग मी. मतलब वो हमारे यहाँ एक वो ट्रस्ट डेफिसिट तो बहुत ज्यादा है ना मार्केट में. तब मुझे जब तक खुद पहचान नहीं होगी तो मैं उसकी क्वालिटी को कैसे जज करूँगी? एंड जब तक मैं खुद 100% श्योर नहीं हूँ, तो वो मैं अपने कस्टमर को अश्योरेंस कैसे दूंगी कि मेरा प्रोडक्ट प्रीमियम है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, इन टर्म्स ऑफ ऑथेंटिसिटी? That is where I found that need to study about gemstones. And to be honest, वो पहले कोर्स के बाद ही ना I actually fell in love with this field. I think it is a remarkable science. I wish के पाकिस्तान में universities had this education as part of the undergraduate as a choice. It is a great career choice. ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ traditional paths को follow करें. Non-traditional career paths में भी there are so many things that you can do. And this is an actual science. बाहर के मुल्कों में इसकी जो डिग्री होती है जोमोलॉजी की, वो it's a 4 year degree. So मुझे लगता है कि एक तो ये एलिमेंट आ गया कि आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको बहुत बेहतर तरीके से करें. दूसरा एलिमेंट ये आ गया कि जो आपका कंज्यूमर है वो उसको अवेयरनेस ही नहीं है, राइट? सो जब हम आजकल बहुत ज़्यादा बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है, सस्टेनेबिलिटी की बात हो रही है, कि जो हम ये मौसम में तब्दीली या एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देख रहे हैं, अभी फ्लड्स के हालात हुए हैं, मानसून के हालात हुए हैं, इट्स बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट, रिलेटेड टू ऑल ऑफ दैट साइकिल, जिसमें सस्टेनेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. एंड एंड फॉर अस, किसी भी क्लोथिंग इंडस्ट्री में देख लें, उसमें देख, ये जो शॉर्ट टर्म फास्ट फैशन वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, वन टाइम यूज वाले, ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं इस सारे सिनेरियो में. हमारे कस्टमर को या हमारे कंज्यूमर को यहाँ पे इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है. उनको लगता है कि चाइनीज प्रोडक्ट्स और टर्किश प्रोडक्ट्स या इंडियन ज्वेलरी जो है वो किसी तरह से सुपीरियर है, जबकि ऐसा सही, विच इज़ नॉट एट ऑल ट्रू. इट्स नॉट एट ऑल ट्रू, बिकॉज हमारे यहाँ जो क्राफ्ट है या हमारे यहाँ जो टैलेंट है, इट इज़ एट पार विद एनीथिंग दैट इज बीइंग डन इन द वर्ल्ड. एंड अफसोस इस बात का है कि लोगों को उसकी कदर नहीं है. सो आई थिंक एजुकेशन होना, उस अवेयरनेस को पैदा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. Fair enough. I think it's a very good thing because sometimes people think business is only like becoming a middleman and doing thing. It's just like giving the solution. But for example, if you know, if I talk about a business like food, if I talk about a Yeah, business like clothing, or if I talk about a business yeah, like jewelry, I think इसमें वही ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है जिसको उस बिजनेस का सारी चीजें पता हो. सो विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द बिजनेस वर्क. ठीक है, हाउ यू स्टार्टेड थिंग. तो बिल्कुल. मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि बीइंग एज अ बिजनेस वुमन, ठीक है, व्हेन यू स्टार्टेड दिस, ठीक है, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर योर फर्स्ट ऑर्डर. ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कि कुछ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं एज एक बिजनेस में, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम
वी सी पीपल सेइंग कि हमें कुछ ना कुछ स्टार्ट करना है, ठीक है, बट दे यूजली डोंट कम अप विद द स्ट्रैटेजी कि अगर फॉर एग्जांपल वो चीज़ नहीं चली तो उसको किस तरीके से वर्कआउट करेंगे. So how was your roller coaster ride when you started your brand till your first order? Because I know when you give your first order, then you know कि okay fine, अब मेरी supply chain समझ में आ गई है, अब मुझे पता है कि how to do it. But how was the experience till that time? अच्छा, सो मेरे केस में ये हुआ था, माय फर्स्ट ऑर्डर केम इन रियली अर्ली. I started off with the Facebook page, which was my primary sales channel for a number of years. And I had made a small inventory of designs, जो कुछ उसमें मेरे अपने personal designs थे, जैसे मैंने बताया, the reason I started. And I took up, I was fond of photography as a hobby, and I took pictures and put that up. And I think within 2 weeks, somebody placed an order for one of the bracelets. So जब ये हुआ तो मुझे actual में यकीन ही नहीं आया. I told my husband, and he was like, it's probably fake. So you should not do it. Why would anybody place an order? इतनी जल्दी से कैसे कोई order place कर सकता है? And it was really a phenomenal feeling, to for that realization to hit कि, you've designed something, you've made something, somebody saw a picture, and then they online placed an order through the Facebook page. आजकल जो लोगों को प्रॉब्लम आती है, आई थिंक, because I also mentor a lot of in a lot of communities for startups. So मैं देखती हूँ कि the young generation या young people who are coming into business, whether it is jewelry or food or clothing or any other thing, हमारे ना रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है, और मार्केट रिसर्च का तो बिल्कुल भी नहीं है. होता क्या है कि you get inspired by somebody else doing something. Your friend has made a startup, या आपके कजन ने कोई काम किया है, या उन्होंने मे बी ज्वेलरी इंपोर्ट करके बेचना शुरू की पेज बना के, एंड दे हिट इट ऑफ. उन्होंने एक इन्वेंट्री सेल ऑफ कर दी, दूसरी कर दी, एंड यू थिंक यार दिस इसमें तो पैसा इनका बन रहा है, एंड आई शुड डू द सेम. एंड जब वो करते हैं, मे बी उनका शायद उतना अच्छा नहीं चले, बिकॉज यू आर जस्ट रेप्लिकेटिंग समबडी एल्सेज मॉडल, एंड मे बी दैट डज नॉट वर्क फॉर एवरीबडी. सो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम प्लानिंग और रिसर्च में नहीं देते. हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम उसको लॉन्ग टर्म सोचने में नहीं देते. अब आप यूएस की एग्जांपल ले लें. ऑल ऑफ अ सडन जब वहाँ टैरिफ्स लग गए और रेट्स, what happened, their whole economy and their whole supply chain जो कि externally dependent थी, वो बैठ गई. And they, the prices went up. हमारे पाकिस्तान में ये हुआ, taxes लगे. So people who are buying off Temu and all of those stuff, वो अचानक से they did not know what to do, because they were dependent on that external supply chain. उन्होंने इतना आगे का सोचा ही नहीं था कि अगर हम for some any reason हम वहां से नहीं कर सके या नहीं मंगा सके, तो फिर हमारे बिजनेस का क्या होगा. तो आई थिंक बिजनेस सोचना और बिजनेस को इम्प्लीमेंट करके सस्टेन करना, they're two very different things. It's very So easy to chalk up a plan, and it seems very idealistic on paper, but practically जब आप करने जाते हैं तो everyday challenges जो है ना, वो बहुत अलग होते हैं. fair enough. Uh, another thing that I wanted to know, okay, a lot of time, before you run your own business, you need to understand the competition as well. Okay. Absolutely. Um, I don't know how this market work. Maybe you can answer me much correctly, because jewelry is more related towards a personal preference, what I personally believe. हाँ, कि बिल्कुल. और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो पाकिस्तान में बहुत सारे ज्वेलरी के ब्रांड्स होंगे, बट टिल द डेट ज्वेलरी कैसी भी क्यों ना हो, लोग ट्रस्ट करते हैं अपने फैमिली ज्वेलर्स को, ठीक है. Yeah. So, what do you think? What is your real competitors? How you differentiate from them? Because online sell don't come up with just inventory रखे and pictures डाल के बेचे. The reality is you need to deliver, and you know a lot of delivery supports, and then the fake thing, और Hmm. फिर अगर आप डिलीवरी कर रहे हैं वो Yeah. पैसे दे रहे नहीं दे रहे, because there is no that Yeah. कैश सीमनेस कि भाई ठीक है, किसी ने Yeah. इजी पैसा कर दिया, किसी ने नहीं करा, कोई कैश Yeah. ऑन डिलीवरी दे रहा है बिल्कुल. नहीं दे रहा है. मे बी बिल्कुल. मे बी यू कम अप विद एवरीथिंग. ऑर्डर गया, Yeah. उन्होंने देखा, उन्होंने बोला भाई ठीक है, पिक्चर में देखा था वैसा था, अब हमें समझ में नहीं आ रहा. So what do you think? How you?
डील विद ऑल दोज थिंग्स। पहले तो मुझे बताएंगे कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं अपने, क्योंकि आई एम प्रीटी मश्योर कि अब वेबसाइट बनाना, एक पेज बनाना, फेसबुक पे कोई चीज बेचना बहुत हाँ, आसान है। ठीक है। बिल्कुल। आई सी अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, आई सी अ लॉट ऑफ गर्ल्स, आई सी अ लॉट ऑफ वुमेन्स हु आर सेलिंग थिंग्स, एंड इट्स मोर लाइकली जब कोई ऐसी चीज होती है जो कि एक पर्सनल प्रेफरेंस पे होती है, तो जरूरी नहीं है कि, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ ब्रांड लाइक तनिष्क, ठीक है, कि वो या इतना ही बड़ा ब्रांड है कि वो, या क्योंकि उनको भी जरूरत पड़ती है उन मॉडल्स की, ताकि वो उसके बिहाफ पे या बेच सके, क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर कोई डिजाइन आपको अच्छा बिल्कुल। लग रहा है तो वो सबको अच्छा लगे। ठीक है। एंड आई एम प्रीटी मश्योर कि ऐसा भी नहीं है, जब से आपने स्टार्ट करा होगा अब तक सिर्फ वही डिजाइन होंगे, इनोवेशंस भी आती रहती हैं। ठीक बिल्कुल। है। तो थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइएगा, कंपटीशन को किस तरीके से देखते हैं आप, इनोवेशन किस तरीके से किया जा सकता है, एंड व्हाट आर द क्रूशल मसले आते हैं स्टार्टिंग में जिनको आपको डील करना पड़ता है, ताकि जो लोग चाहते हैं, क्योंकि वैसे अब जैसा भी आपने कहा ना कि एक चाय पे बैठ के सोचना बिजनेस का बहुत अलग होता है, बट या टू रन अ बिजनेस it's a very different thing. So बिल्कुल। I would like to know about सो that thing. फर्स्टली द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, कंपटीशन। अच्छा, मेरा ना इसको देखने का नजरिया बिल्कुल अलग है। आई थिंक देयर आर टू फैक्टर्स टू इट। द फर्स्ट इज कि मेरा कंपटीशन जो है वो सिर्फ मेरे अपने काम के साथ है। सो माय एम इज कि जो काम मैं 2 साल पहले कर रही थी, तो 2 साल बाद भी अगर मेरी क्वालिटी में मजीद बेहतरी नहीं आई है, या मैं उससे सुपीरियर क्वालिटी का काम, या उससे ज़्यादा इनोवेटिव डिज़ाइंस, या उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी ऑफ स्टोन्स लेके नहीं आ रही हूँ, दैट मीन्स दैट आई एम नॉट डूइंग वेल। सो मेरे लिए वो एक पर्सनल बेंचमार्क, यू नो, टू परस्यू एक्सीलेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एंड दैट इज़ माई बिगेस्ट कंपटीशन इन दैट सेंस। एंड उसी की वजह से मैं अपने काम के साथ-साथ I have been, constantly enrolled in doing my certifications. I did my diamond grading key, my diploma this year. I just completed. I was in London earlier and did a lab class in a course in London. मुझे किसी ने कहा कि जी पाकिस्तान में डायमंड मार्केट कहाँ है? Why are you doing this? So बात अगेन देन, अगर आप सिर्फ इसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि कोई काम मैं इसलिए करूं कि मैं पैसे बना लूंगी, वो बड़ा लिमिटेड स्कोप, बहुत लिमिटेड विजन है। कोई काम मैं इसलिए करूं कि मैं उसमें अपने काम को एक्सेल करके, एंड देन ऑब्वियसली इंट्रोड्यूसिंग दैट अवेयरनेस इन पाकिस्तान, आई थिंक वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा जो कॉम्पिटिटर मैं देखती हूँ, वो उस अनअवेयरनेस को देखती हूँ जो कि विच इज रैम्पेंट एवरीवेयर इन सोशल मीडिया। यू नो, अब तो माशाल्लाह से हम इतना ग्रो कर गए हैं कि हम अपने डिजाइन और लोगों के उस पे पेज पे देख रहे होते हैं बिकते हुए, एंड मजे की बात ये वो हमसे महंगा बेच रहे होते हैं। तो अभी रिसेंटली जब ये हुआ था, पुट अप अ स्क्रीनशॉट सेइंग कि यार हमारे डिजाइन हमसे लें, कम पैसों में लें ना कि आप उन पे That's प्रीमियम that देके is किसी that और से। is that that is one of the things, because a lot of time पाकिस्तान में अगर रीसेल देखी जाए तो फेक की रीसेल ज्यादा है rather than the हाँ ना। original, क्योंकि बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम पीपल थिंक कि सही है, किसी का सही चल रहा है, लेट्स, क्योंकि जब जितना आसान सोशल मीडिया पे या ऑनलाइन बेचना है, उसमें करना ही ना। क्या है, उन्होंने आपकी वेबसाइट पे जाना है कि स्क्रीनशॉट लेना, उसको अपनी वेबसाइट पे डालना है, लेकिन बेचना है। आसान बहुत है, लेकिन देन अगेन मैं तो कहती हूँ कि जो कंज्यूमर है ना, उसने अपनी नॉलेज बढ़ानी है। वाई आर दे सो अनअवेयर, या उनकी इंफॉर्मेशन में, अब तो सोशल मीडिया इंटरनेट के ज़माने में आप कैसे किसी पे यकीन कर सकते हैं कि एक बहुत खूबसूरत तस्वीर है, मे बी इट इज़ एआई जनरेटेड, और उसके नीचे लिखा है कि ये एमराल्ड की अंगूठी जो है आपको सिर्फ ओनली 1600 रुपीज में डिलीवर हो जाएगी, 200 रुपये डिलीवरी देके। सो इफ somebody is taken in by that hook and clicking the buy button, मेरा उनसे सवाल है कि अगर इस जमाने में उनको ये ही नहीं पता कि एमरल्ड जो पत्थर है उसकी प्राइस पॉइंट क्या होनी चाहिए, या वो कितना प्रेशियस स्टोन है, वो टॉप 3 कलर्ड स्टोन में से एक पत्थर है, किसी तौर भी मुमकिन नहीं है कि वो 1600 रुपए में अंगूठी में लगा हुआ आपको मिल रहा हो, राइट? but सो don't you think it's very, मतलब ऑडियंस अगर देखी जाए तो ये ऑडियंस ज्यादा है, मतलब यहाँ पर बात आती है, अगर मैं डिस्कस करूँ तो इट्स अबाउट क्वांटिटी ओवर क्वालिटी। वी हैव सीन yes, मल्टीपल प्रोडक्ट्स yes, ऑन but टेम। that is, but that is
where we need to improve on the quality, and we can only do that. देखिए हमारी अपनी लोकल इंडस्ट्री अगर मैं अपने नेबर से कंपेयर करूं, आपको पता है कि उनकी जीडीपी का कंट्रीब्यूशन उनकी ज्वेलरी इंडस्ट्री का कितना बड़ा है. It बहुत is ज्यादा not ही होगा, just आई एम प्रीटी बहुत मच श्योर. ज़्यादा, बहुत ज़्यादा. So it's almost about 22% of the जीडीपी जो वो गोल्ड और ज्वेलरी एक्सपोर्ट भी करते हैं और अपने यहाँ भी वो इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं. हमारे यहाँ आधी इंडस्ट्री टैक्स इवेजन में लगी हुई है. उनकी सारे डीलिंग जो है वो इट्स नॉट डॉक्यूमेंटेड, बिकॉज हमारे यहाँ गवर्नमेंट की उस तरह से सपोर्ट नहीं है, पॉलिसीज नहीं है. हम कोरियर नहीं कर सकते, हम बाहर अपना सामान नहीं कर सकते, भेज नहीं सकते. हम बहुत सारी चीज़, एंड देन उस पे से व्हेन ब्रांड्स, जैसे मैंने भी कहा कि सेल या क्लेम टू सेल थिंग्स लाइक दैट एंड पीपल आर हैप्पी. एक्चुअली देन अगेन वो वही बात आती है, आपने उनको इतना यूज टू कर दिया है कंज्यूमरिज्म के इस जाल में, फॉर फास्ट फैशन, फॉर चीपर प्रोडक्ट्स. बात सारी आ गई कि इट्स अ competitive मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज लोग कहते हैं कि यार मुझे कोई चीज़ अगर सस्ती मिल रही है, वो विजन मिसिंग है. मोस्ट ऑफ द ब्रांड्स दैट यू सी दैट यू आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, वो बेनिफिट या जो उनका उनका गोल या उनका वो शॉर्ट टर्म है, इट्स मनी मेकिंग. यहाँ पे लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग, यहाँ पे लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को बिल्डअप करना, लॉन्ग टर्म इंडस्ट्री को बिल्डअप करना, अपने क्लाइंट को एजुकेट करना सो दैट दे मेक बेटर डिसीजंस, वो एलिमेंट मिसिंग है बहुत ज्यादा. फेयर और इनफ. वो मुझे लगता है कि देयर इज अ ह्यूज गैप. बिल्कुल ठीक है. अभी आपने बोला कि पाकिस्तानी मार्केट, व्हाट डू यू थिंक, what are the key problems in Pakistani market, and what are the main key good things in Pakistani market as a businesswoman? If I talk about the good things first, I think हमारे साथ जो एक वो लेबल resilience का लग गया है ना, I think I value that. हम हर तरह के हालात में survive कर जाते हैं, and I think it's not an easy task. We go through a lot, yet we don't give up. So I think हमारी हमारे लोगों की और हमारी मार्केट की एक ये बड़ी क्वालिटी है, हम अडेप्ट कर लेते हैं. कोविड में हमने अडेप्ट किया. बहुत सारे हम ऐसे मौके देखे कि जहाँ हम स्ट्रगल कर रहे थे, बट देन अगेन वी समहाउ मैनेज टू पुल थ्रू. तो एंड ऑब्वियसली आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं बाहर रह के कि जो हमारे यहाँ एक वो ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आ जाता है हर चीज़ को सपोर्ट करने का, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. और अगर नेगेटिव्स की तरफ आ जाएं तो आई थिंक द लिस्ट इज क्वाइट लॉन्ग, बट टू पिक अप जस्ट अ फ्यू, उसमें से पहली चीज तो मुझे पॉलिसीज लगती हैं कि कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है. अभी जब ये टैक्सेशन की लास्ट ईयर बजट के बाद जब बात हुई थी, पिटिशंस भी साइन हुए, स्मॉल बिजनेसेस मतलब barely, there's so many that shut down because आप इतने कोई humongous profit margin पे तो नहीं work कर रहे, right? You are a small business, you have your operational cost, आपके everyday inventory के मसले हैं, आपकी delivery के मसले हैं, आपके payments आप chase कर रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ facilitate उस तरीके से नहीं होती हैं. तो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है एक ऐसी एनवायरनमेंट में काम को ग्रो करना या उसको आगे लेके जाना जो बहुत ज़्यादा सपोर्ट ना कर रही हो आपको. एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नीश प्रोडक्ट्स जो कि नेसेसिटी की कैटेगरी में नहीं आते हैं, जो कि सीजनल बाइंग या डिस्पोजेबल इनकम पे डिपेंड करते हैं, उनको ग्रो करना जो है थोड़ा सा आई थिंक और मुश्किल हो जाता है. ठीक हो गया. Coming back to nowadays, what I see is कि if you are an entrepreneur in Pakistan, आपकी अपनी प्रोफाइल बहुत मैटर करती है. How much famous you are is how much famous your brand is. I see this कि अगर मैं इंडिया के बिजनेसमैन की बात करूं जिसमें बोर्ड के ओनर है, हमने शार्क टैंक में देखा, और उनको हम पहले उन ब्रांड्स को जानते थे लेकिन उन लोगों को नहीं जानते थे. बट जैसे जैसे आपकी अपनी एक पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ती आती है तो आपकी ब्रांड की सस्टेनेबिलिटी और आपकी ब्रांड की तरफ लोगों की जो राय है वो अच्छी होती जाती है. जैसे अगर फॉर एग्जांपल अभी अमन अमन गुप्ता आई थिंक है बोर्ड के जो ओनर है, जो इंडिया में बहुत बड़ा वेरिएबल ब्रांड है. Yeah. ठीक है, वो जहाँ पे दिखेगा तो लोगों को लगता है कि भाई ठीक है, अगर वो खुद बंदा है सही है. And now we are seeing you also going to different podcasts and trying to
टीच पीपल एंड योर पर्सनल प्रोफाइल मैटर्स टू, ठीक है? तो मुझे थोड़ा ये बताइएगा कि हाउ डू यू सी अ पर्सनल ब्रांड, इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सनल ब्रांड ऑफ एन एंटरप्रेन्योर्स लाइफ? क्योंकि ठीक है, एक अगर एक जॉब के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ तो पर्सनल ब्रांडिंग जितनी भी हो जाए उसका मेन गोल यही होता है टू गेट अ जॉब, ठीक है? वेदर इट्स इन हाँ, अ गुड कंपनी, वो कंपनी स्विच करेगा एंड फिर वो उस कंपनी की हाँ, तरफ हो जाएगा। बट बिजनेस इज नॉट लाइक दैट। हाँ, बिजनेस इज नॉट लाइक कि ठीक है यार, आज बिजनेस अच्छा है तो ये बिजनेस की तरफ चले आते हैं, कल बिजनेस नहीं चलेगा तो ठीक है। बिकॉज यू नीड टू ऑल्सो टेल पीपल के जो आप कहना चाह रहे हैं आप उसमें खुद बिलीव करते हैं, ठीक है? बिल्कुल। दिस इज द सेम थिंग दैट वी सी फ्रॉम इंटरनेशनल ब्रांड्स एज वेल, कि जिनके ओनर्स होते हैं वो उस चीज को कैरी करते हैं और वो या खुद बोलते या हैं कि भाई अगर मैं यूज कर रहा या हूं तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। हाउ डू यू थिंक सो योर पर्सनल आई थिंक ब्रांड हेल्प यू टू ग्रो योर बिजनेस? इसका एक बहुत जो आई थिंक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, द चेंज की जो पर्सनल ब्रांडिंग इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है आजकल के दौर में, दैट इज बिकॉज विजिबिलिटी बढ़ गई है, राइट? सो 20 years बैक हमारे पास सोशल मीडिया या डिजिटल स्क्रीन्स का इतना इम्पैक्ट नहीं था हमारी जिंदगियों में। डिजिटल कंजम्पशन हमारी उस तरह से नहीं थी। अब एंड एट दैट पॉइंट इन टाइम इट रियली डिड नॉट मैटर कि बिलबोर्ड पे जो आप साइन देख रहे हैं, किसी कंपनी का इश्तेहार देख रहे हैं, किसी क्लोथिंग ब्रांड के कपड़े देख रहे हैं, उस फॉर्म ऑफ मार्केटिंग में यू इट रियली डिड नॉट मैटर कि उस बिलबोर्ड पे जो कपड़े हैं उनको उनका मालिक कौन है, या उस मिल का मालिक कौन है, या उसका ब्रांड कौन है। Now that when the screen has become smaller and it's become more closer to you and it's become more intimate to you, and the amount of I think data, yeah, the amount of interaction that we do on a daily basis, उसमें रिकॉल खत्म हो गया है। जो चीज मुझे समझ में आती है, राइट? सो इफ यू गोइंग थ्रू एन इंस्टाग्राम फीड इन योर डे और आप 10,000 किस्म के ब्रांड से गुजर रहे हैं, सो माई ब्रांड इन ऑल ऑफ दैट हैज टू स्टैंड आउट फॉर यू टू रिमेंबर इट लेटर। जब आपने एक तरह की ज्वेलरी बहुत सारी देख ली, जो कि आजकल होता है कि आप एक ब्रांड देखें, दूसरा देखें, चीजें सबके पास एक हो रही थी, जो आप बात करेंगे वो फेक प्रोडक्ट्स रख रहे हैं या वो बड़े डिजाइनर ब्रांड्स की कॉपीज बेच रहे हैं सारे के सारे मंगा के। सो इट रियली डजेंट मैटर कि जी उनका लोगो कैसा है, बिकॉज प्रोडक्ट सारा सेम है। बट फॉर यू टू रिमेंबर लेटर कि यार वो मैंने किसी का देखा था, who was that, and that is where the connection comes in, because then you remember कि यार वो उस उन खातून का था या उन साहब का ब्रांड था, and I've heard him speak, yeah, I have seen, I've seen his maybe lecture, I've maybe seen her workshop, or maybe I've seen her her certifications, और वो उनका ब्रांड है और ये वो काम करती हैं। So I think that association of personal branding has become more important than ever before, because आपका brand जो है is now part of your identity. It's an extended reflection of your ethos, your values, and मुझे लगता है कि जो authentic brands होते हैं, उनके जो owners हैं या founders हैं, वो उनकी values और ethos और उनका that passion reflects in their brand. And I think that is why उनका recall या उनकी impact ज़्यादा होता है। ठीक हो गया। आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू योर वेबसाइट और मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि how do how do a business person or a person who wants to run a business knows that this is the right price? Because uh, if I'm I see online एक चीज के बहुत सारे अलग अलग प्राइसेस हैं, ठीक है? Yeah. एंड इट्स नॉट अबाउट बीइंग एन एप्पल और सैमसंग के जहाँ पे आप जो Mm. भी प्राइस लगेंगे लोग वो लेंगे, Yeah. ठीक है? बट व्हाट डू यू थिंक बीइंग एज अ बिजनेस वुमन इन पाकिस्तान, how important is the pricing? Because if you're dealing with something, I see people who can change their mind for like 20-50 rupees. Okay, fine, ये 20 रुपए ज्यादा है, यहाँ पे 20 रुपए कम है, let's switch to Yeah. that thing. How do Yeah. you think पाकिस्तानी मार्केट में प्राइसिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आई थिंक मेरा जो इस पे थोड़ा सा ओपिनियन है वो ये है कि योर प्राइसिंग शुड रिफ्लेक्ट द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट। योर प्राइसिंग शुड जस्टिफाई द क्लेम दैट यू आर मेकिंग विद योर प्रोडक्ट। अगर कोई बहुत ही ओवरली प्राइस प्रोडक्ट है और आपने बिल फर्ज वो ऑनलाइन मंगा भी लिया है एंड यू हैव ऑर्डर्ड इट
After that first time, if you're not satisfied with the quality and with the product that you got, you will never buy that again, even if they have a 50% off. आप कहेंगे यार नहीं वो प्रोडक्ट ही प्रॉब्लमेटिक था या मुझे समझ में नहीं आया. I'm not going to waste money on that. In comparison, maybe you're moderately priced as compared to the local market. But जो product आपका है वो इतना premium है, इतना superior है to what is available in the market, that you make a customer, and then that customer becomes a repeat customer because वो आपके brand को trust करने लगा है, because of he's used your product. उन्होंने आपका प्रोडक्ट उसकी क्वालिटी को आजमा लिया है, आपकी डिलीवरी को आजमा लिया है, आपके कस्टमर सर्विस को आजमा लिया है, एंड देन they find that practical solution to their needs, so they are willing to pay that price because उनको लगता है कि हाँ it justifies that whole package. यहाँ पे थोड़ा-सा वही बात आ जाती है जो आप अभी बात कर रहे थे कि बहुत सारे ब्रांड्स या बहुत सारे कंज्यूमर्स ऐसे हैं कि जहाँ उनको कुछ 50 या 100 रुपीज़ लेस एंड दे वुड गो देयर. सो थोड़ा-सा जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ लोकल मार्केट को या लोकल इंडस्ट्री को, वो हमारे कंज्यूमर्स को या कस्टमर्स को या क्लाइंट्स को कुछ बिहेवियरली ऐसा ट्रेन हो चुके हैं कि पीपल नाउ वेट फॉर द सेल्स. वो एंड ऑफ सीजन सेल लगेगी. आई डोंट नो कि किस हद तक वो जेन्युइन सेल्स होती हैं, तो बड़े कंपनीज खुद बेहतर जान सकते हैं. बट it is like, when you get it on 30% off या 50% off, हमने तो जब भी buy करना है, and then you see those masses of people shopping their hearts out. ओरिजिनल प्राइस पे या एक्चुअल प्राइस पे कोई लेने को तैयार ज़्यादातर नहीं होता है. सो ये कुछ पैटर्न्स हैं कि जब आप प्राइसिंग डिसाइड कर रहे हो तो आपने अपनी ब्रांड की प्लेसमेंट के लिहाज से, मार्केट की करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से, यू हैव टू डिसाइड फॉर योरसेल्फ फॉर योर ओन ब्रांड. मेरे मामले में या हमारे जूलरी इंडस्ट्री के मामले में इट हैज़ बीन रियली डिफिकल्ट. आई ऑफन गेट कंप्लेंट्स कि हम बहुत ज़्यादा प्राइसेस अपने सोशल्स पे नहीं डिस्प्ले करते. वेबसाइट पे जो फिक्स प्रोडक्ट्स या फिक्स लाइन है उन पे हमारे प्राइसिंग होती है, लेकिन बिकॉज द कॉस्ट करंटली गोल्ड प्राइसेस और सिल्वर प्राइसेस की इतनी रैपिडली फ्लक्चुएट कर रही है दैट उस उतने डिफरेंस से पहले कभी फ्लक्चुएट नहीं किया था. पहले अगर फ्लक्चुएट होता भी था तो इट वाज मेयर पॉइंट्स और मेयर रुपी और टू अप एंड डाउन. अब तो डायरेक्टली हजारों में जंप हो रहा है, एंड उसकी वजह से हम वो जो कॉस्ट पे इम्पैक्ट आएगा वो हम बेयर नहीं कर सकते, वो हम कुशन डाउन नहीं कर सकते. सो वी नीड टू आइदर कीप आवर प्राइसेस अपडेटेड ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस, और ये है कि कस्टमर जब हमसे रिक्वेस्ट करे तो तब हम उनको उस दिन के हिसाब से, उस दिन की सिल्वर की प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करके बताएं. Fair enough. Uh, how much time it's for you for to run this business? For how many times you're running this? कितने साल हो गए अब इसको? हमने just yesterday we celebrated, we had a small event to mark our decade of our work, 10 years. ठीक है, तो आई थिंक जो अब मेरा अगला सवाल है वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए. आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई बिजनेस बंद हो जाता है? बिकॉज आई एम प्रीटी मच श्योर कि 10 साल बाद आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आप कस्टमर्स को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि Yeah. आपके पास बहुत बड़ा डाटा होता है, आप बहुत बड़े डाटा को देख रहे होते हैं. ओके फाइन, अभी कहने में बहुत आसान लगता है, मैं जैसा भी आपने कहा Yeah. ना कि प्राइस की फ्लक्चुएशन, Yeah. क्योंकि सोशल मीडिया कैन बी योर वर्स्ट नाइटमेयर. ठीक है, आप कहीं पर अगर लिख दें, Absolutely. अगर कहीं पर आप लिख दें कि ये Absolutely. चीज फॉर एग्जाम्पल 4,000 रुपए की है, और क्योंकि और उसमें ये भी नहीं है ना, वो आपका स्क्रीनशॉट निकालेंगे और वो बोलेंगे तो आपने अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, एंड यू कैन Yes. डू एनीथिंग इन ऐसा ही होता पाकिस्तान. है. ठीक है, ऐसा ही होता है. क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अब ना, अब तो आप, क्योंकि आपको ये मसला ये भी होता है, वीडियो बना रहे हो तो उस पर स्क्रीनशॉट निकालेंगे, बोलेंगे भाई हमने तो आपकी वेबसाइट से निकाला है. बट आई थिंक True. यू आर लाइक अ प्रो इन दैट. अब एक एक 10 साल से आप एक काम कह रही हैं, आप प्रो हो चुकी हैं. आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मेन बड़े मसले होते हैं जिसकी वजह से बिजनेस बंद हो जाता है? So, पिछले दिनों, I think it was last year, I was doing some research for a talk, और मैंने कहीं पढ़ा कि 1 in 10 startups fail. I mean, 10 में से एक स्टार्टअप सक्सीड होता है, मेजोरिटी 8 और 7 जो है वो फेल हो जाते हैं.
सो उसकी वजह मेरे ख्याल से ये है, या जो बहुत ज़्यादा बिज़नेसेस नहीं बहुत हाई स्केल कर जाते हैं, सक्सेसफुल होते, हम लोग ना फेलियर से डरते हैं। हमारा मसला ये है कि वी डोंट वांट टू फेल फास्ट। हम कहते हैं हम इतना सोच विचार करके चीज़ें प्लान करके हम प्रैक्टिकली उनको टेस्टिंग नहीं करते। हम अपने बिज़नेस प्लान्स को हम 3-3 साल के बना लेंगे। बट जैसे स्टार्टअप्स खोलते हैं, दे दे कम ऑन विद नंबर्स, वो कहते हैं कि जी हमने ये सोचा है, ये सोचा है, ये सोचा है। बट जब आप वो 3 महीने ही अगर उसको इम्प्लीमेंट कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो हमने पेपर पे प्लान किया था, चीज़ें उस तरह नहीं चलेंगी। बिकॉज़ रियल टाइम सिनेरियो या रियल लाइफ सिनेरियो जो है, उसमें वेरिएबल्स आ जाते हैं जिनका आपने शायद प्रोविज़न नहीं रखा होता। एंड दूसरी जो मुझे एक चीज़ लगती है, जो मैंने आजकल बहुत ऑब्ज़र्व की है नए स्टार्टअप्स में, most of these kids who are eager to maybe run a business, और जिनका स्टार्टअप है या टेक बिजनेस में, एनी ऑफ दीज डाइवर्स फील्ड्स, आजकल एआई बहुत इन है। आई थिंक आप किसी उसमें इंक्यूबेशन के इंक्यूबेटीज को अगर आप जज करने जाएं, तो वहां पे आर्ट जो है वो कुछ एआई का एलिमेंट या कोई बॉट लेके आए हुए होते हैं। आई थिंक बट 10 ही बट लाए हो तब तो शायद। अब तो 10 ऑन या 10 इज सो लाइक यही। या बट माय पॉइंट इज के हमारे यहाँ मसला क्या है कि ये लोग जो सब जो विजन लेके आ रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं, उनका ख्याल ये होता है कि हम हमारा एक आइडिया है, और हम इसके बाद इसको लेके एक एमवीपी बना के एक वीसी से जो है हम पैसे उठा लेंगे। दैट्स द सो अल्टीमेट गोल। ठीक है ना जी, अब अल्टीमेट गोल ये हो गया। अब ये जो हमारे, आई थिंक मैं जिस जनरेशन से बिलोंग करती हूँ, हमारा जो अल्टीमेट विजन होता था वो इम्पैक्ट होता था, सोशल इम्पैक्ट होता था, कि अगर मैं कोई भी काम करने जा रही हूँ, लेट अलोन मैं ज्वेलरी ही बना रही हूँ, तो उसका इन्वायरमेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा, क्या लोगों को उससे कोई फायदा होगा। देयर वर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट आई एटलीस्ट ऑलवेज आस्क्ड माई सेल्फ व्हेन आई वाज डूइंग वर्क। चांदी में मैंने हमेशा काम किया, हालांकि अब इतनी प्राइसेस एस्केलेट हो गए, आई डोंट वांट टू गो इनटू मेटल। I believe that metal is not a good choice for the environment, and I firmly believe कि जिस तरह से गोल्ड की ज्वेलरी, हेirloom ज्वेलरी आप पॉलिश करा के बच्चों को दे देते हैं, चांदी is also lifelong like that, and that is why I will not shift, and so on and so forth. अभी क्या हो गया, अभी हो गया कि हमने, ये हमारा आइडिया है, ये हम इसको 3 महीने में हम आपको ऐप बना देंगे, और फिर हम फंडिंग के लिए अप्लाई करेंगे, हम प्री सीड इतना उठाना चाहते हैं, हमारी आस्क कितनी है, एंड देन एवरीबॉडी थिंक्स कि जो वहाँ काम कर रहे हैं वो अचानक एक यूनिकॉर्न बन जाएंगे और वो बहुत सारे पैसे उठा लेंगे, एंड देन दे विल ऑल आइदर वर्क इन पाकिस्तान या सब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। दैट इज द एंड ऑफ देयर स्टार्टअप स्टोरी। तो वो जो एक दैट पैशन टू बी अ चेंज मेकर, मुझे लगता है वो मिसिंग है। मैं अक्सर ये बात करती हूँ कि जो हम हमसे पहले के जनरेशन्स में, ईदी साहब थे, डॉक्टर अदीब थे, ये वाले जो लेजेंड्स है ना, ये जो जो जिन्होंने माशरे को बनाया, जिन्होंने हमारे मुल्क को बनाया, जिनका विजन था ग्रेटर देन देयर ओन सेल्फ, राइट? आई डोंट सी दैट हैपनिंग इन द यंगर जनरेशन। मुझे लगता है कि शायद हम वी फेल टू पास ऑन दोज वैल्यूज। हमारी जनरेशन में मुझे कोई दूसरा ईदी, डॉक्टर अब्दुल सत्तार या कोई डॉक्टर दीप नहीं नजर आता। वी डोंट सी दोज काइंड ऑफ पैशन प्रोजेक्ट्स, इसको कहना चाहिए। अब एवरीबॉडी, इट इज ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट किसने कितनी No फंडिंग one is, उठा I ली। think, no one is playing for a longer game for now. What I personally क्या? believe ke um, now everyone wants to have a success story in a year or two. या जैसे आपने कहा कि ठीक है, they have a dream starting off कि हाँ भाई हम ये करेंगे, but when the money drops या when the money comes, तो उनको वो कहते हैं ठीक है यार, let's take the money and start something else. ठीक है. The last thing that I wanted to discuss is I'm pretty much sure you started your business जब कोरोना नहीं था। आपने कोरोना का बहुत बड़ा फेज़ देखा। या आपने बगैर ये जेनज़ीज़ वाली जंग के फेज़ देखा। नाउ या इट्स अ डिबेट ऑफ द टॉपिक, ठीक है? एवरीवन इज़ टॉकिंग अबाउट इट, ठीक है? और मुझे जहाँ तक लगता है कि जब आप किसी भी तरीके से फॉर नाउ इन 2025 अगर मैं किसी भी तरीके से किसी ऑनलाइन प्रेजेंस को क्रिएट करना या चाहता हूँ, तो मुझे कहीं न या कहीं एक जेन ज़ी की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल। क्योंकि मुझे नहीं पता कि लोग उसको किस तरीके से देख रहे हैं।
the use of a mobile phone or social media, being as a millennial, is very different. Being Yeah. as a Gen Z is very different. I have two Gen Zs at my home, and the way Mm. they are using their phones Yeah. is totally different. Okay. बिल्कुल. So how do you think this Gen Z thing is good? Like, you have worked with a lot of people. I'm pretty much sure कि आपकी टीम के Yeah. अंदर बहुत सारे लोग हो गए, because it's a बिल्कुल team हम. effort, ठीक है. But you need to बिल्कुल. also understand कि यार जिसको मैं बेच रहा हूँ, सही है, वो Gen Z भी हो सकता है, क्योंकि the bracelets बिल्कुल. and everything is more like बिल्कुल. um, the बिल्कुल. girls who are from 14 years till maybe Yeah. 20, 25, ठीक है. Mm. So how do you think their mentalities are like, what are the key steps? Because अब तो मैं देख रहा होता हूँ कि campaigns में भी एक बहुत बड़ा, बहुत सारे मेरे दोस्त जहाँ काम कर रहे हैं या हम जी. जब काम कर रहे होते हैं, तो हम campaigns को इस तरीके से डिजाइन करवाते हैं कि ठीक है यार, अगर ये कोई ऑफर है या ये कोई प्रोडक्ट है या ये कोई रील बन रही है, इसको इस तरीके से बनाओ कि यार जेन ज़ी अट्रैक्ट हो, ठीक है. डू यू Mm. थिंक दिस स्ट्रेटजी वर्क्स इन योर ब्रांड एज वेल, या टिल द डेट यू थिंक योर ओनली बायर्स आर पीपल फ्रॉम 30 प्लस और 35 नहीं. प्लस? So ये this was true up till 2 years back. हमारा my brand image was that it's a brand targeted towards a more mature audience, to housewives or women who are already working and earning and had that income to spend as they wished. But I think there was a gap जो मुझे नजर आया कि हाँ we could also design for a younger crowd. I think probably because I don't have any daughters. अगर शायद घर में बच्चियां होती तो मैं I would have done it earlier. But I we did start a new line which is more targeted towards Gen Z, and उसकी हमने फिर obviously market भी उसी अंदाज से उसको किया, and I think we were quite successful in doing that. It's a collection called Nova, which is very minimalistic, which is very chic and uh, very modern in that appeal. तो वो हमें लगा कि हाँ, this is, as you said, कि it's a huge chunk of audience that of consumers that we need to target, because they have that buying power, and they have the decision making power to purchase their own products. So we are targeting them as well. Perfect. I मुझे लगता think है कि Gen Z में ना potential बहुत है. हम with despite all the debate that goes around them, they're far more capable because they're far more equipped with technology than we were. And I think if they make good use of it, they will go far ahead, much more than we did, you know. I personally believe क्योंकि 2025 अगर देखा जाए, so is the time where Gen Zs are starting earning money. If someone is born in 2020 or Yeah, 2000s, so apparently he or she is working first or बिल्कुल. second or third job in their life, and they're starting earning money. बिल्कुल. And I think एक दो साल के अंदर they are becoming the person जिनके पास ये Yeah, अथॉरिटी होगी चीजें खरीदने की, yeah, अपनी फैमिली में चीजें बिल्कुल. करने की. तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्कोप फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी बिल्कुल. वन, बिकॉज नाउ वी नीड टू सी के जेंजीज आर टूवर्ड्स दैट पॉइंट जहाँ पे वो अपनी फैमिली की चॉइसेस या अपनी चॉइसेस का फैसला कर रहे बिल्कुल. होंगे. तो आई थिंक अगर बिल्कुल. बिजनेस में ये गैप ना हो और हर बिजनेस उस तरीके से चले, तो आई थिंक इट विल वर्क. द लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू डिस्कस with you is, you started as a working, like you started as a housewife, Mhm. and you shifted your whole career into a full-time working woman inside your house, ठीक है. Yeah. So उसके अपने पर्क्स हैं, उसके अपने मसले भी हैं, क्योंकि when you're working बिल्कुल है. working from home, it comes up with a good price, ठीक है. आपको फिर वो देखना होता है Yeah. कि everything you can see it. I had a conversation with one of a person, and they were like कि सबसे बुरी चीज work from home की ये है कि आपको हर चीज दिख रही होती है, because Yeah. when you're office you Yeah. are cut off. आपको पता होता है कि ठीक है मेरे घर And में it साइज. works both ways. आपको भी नजर आ रही होती है और दूसरों को भी होता है कि ये तो घर पे तो she's not doing Yeah, anything. that is So, क्योंकि what I personally believe कि running a business, yeah, running, sometimes you were just seeing reels and people were like, yeah, what, you're wasting your time, but you are researching for your brands, what other yeah. brands are doing, okay. My main discussion, yeah, my main point is that I wanted to know, okay,
व्हाट डू यू थिंक व्हाट विल बी द राइट माइंडसेट, या आपने अपने आप की क्या रूटीन में ये चीजें लाई जिसकी वजह से आपको लगता है कि एक तो हाउसवाइफ एक वर्किंग वुमन में बन सकती है, और अगर वो बन रही हो तो उसको अपनी लाइफ के अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस करने चाहिए? जैसे कि मुझे ऐसा लगता है कि every person who is working from their home, they should have a desk, they should have a place Absolutely. where they sit, so their brain think कि नहीं ठीक है अब हम यहाँ बैठे हुए, it's all about business. Absolutely. What are the one two things that you wanted to see, or any tip that you wanted to give to the people? Because I personally believe कि हमारे यहाँ अभी भी in 2025 housewives को सिर्फ हाउसवाइफ की जाता है, बट कि जब मुझे लगता है कि इट्स Mm. अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, It is. It क्योंकि is. ओवर देयर व्हाट आई सी इज हाउसवाइफ्स आर मेकिंग अ प्रोडक्ट जो कि एक एआई नहीं है, जो बिल्कुल सही प्रोडक्ट है, जो कि बच्चे हैं जिनको आपको Yeah. डेवलप बिल्कुल करना है, जिनको आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। इसका मतलब बिल्कुल। कहीं ये नहीं है कि जो लोग काम कर रहे हैं वो ये चीज नहीं देख रहे, बट what you think what should be the right mindset, या what should be the tips that you wanted to give to a working woman from an house? Yeah. देखें, till my kids were small, I think I was telling that to somebody yesterday at that event कि मुझे लगता है कि ना it's been barely 3 or 4 years जब मेरा full focus काम पे है, because before that I was obviously my kids needed me more, and मेरा अपना personal एक उसूल ये रहा था कि it was always family, home and then work. So and obviously जब आप एक homemaker हैं कि housewife हैं या आप joint family में रह रहे हैं like most of us do in Pakistan, so वो आपका बहुत सारी roles and responsibilities आप juggle कर रहे होते हैं, and in all of that, maintaining a balance when you also are doing your own work, वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है at times. I think एक tip तो आपने mention कर दी, it's very important to have some small space that you could, maybe a desk. I have mine right here. मैंने अपने इस पे diplomas frame करके लगाए हुए हैं, because A, it is a reminder, B, it is an inspiration, on days when you think कि यार मैं क्या कर रही हूँ और क्यों कर रही हूँ. So, we all have our bad days. So it's very good to have that spot where you can focus. Another thing is routine. जिस तरह से लोग जो घर से बाहर जाते हैं काम करने के लिए, उनका एक रूटीन होता है. They wake up, they dress up, नाश्ता करते हैं, and then they go out to work. So when you're done with your home के chores या आपकी जो responsibilities हैं, it's very important to build up a routine, a particular time every day for your work. I used to do that when my kids were small, because I was never into watching TV or Netflix or any of that. So मेरा टाइम होता था कि रात के डिनर के बाद, when everybody and all my roles and responsibilities were done, that is when I used to work. मैं अपना content prepare करती थी या मैं अपने orders को follow up करती थी. So whenever, particular time of day that suits you, when you are free, focus that for work. Tell yourself that now I'm going to work. Maybe, जैसे आपने कहा, आप अपने desk पे आके बैठ रहे हो या कर रहे हो, make a cup of tea and then sit and prepare and yourself for that role play. And now I'm not going to go into the kitchen. I'm not going to go and answer the doorbell. I'm now at work and I need to focus and get some work done. Time blocking helps. I think maintaining a calendar helps. And most of all, I think above all of these is maintaining your physical and mental health. I think Khawateen ke liye especially cannot emphasize enough. It is so important to look after your physical and mental health. Try and take our time for some form of exercise, maybe a walk, because जितना ज़्यादा हम multitask कर रहे होते हैं as compared to men, बच्चे भी देखने हैं, घर भी देखना है, cooking भी देखनी है, काम भी देखना है, हमारी अपनी health in often cases neglect हो जाती है. So I think it's very important for women to focus on their mental and physical health and their well-being. जब आप सबका ख्याल रख रहे हैं घर में, तो आप अपना भी रखें. So make sure that you take out time for that. Perfect. And I think we have covered very good topics, and my main concern was that is to because मेरी contact list में एक आप वाहिद हैं जो mm, एक पैशन के तरीके से हर चीज को बैलेंस देके चल रही हैं, एंड आई रियली yeah, अप्रिशिएट, क्योंकि अ लॉट ऑफ टाइम वी हैव सीईओ सीएफओस मेल dominancy everywhere. I yeah, personally think it's not like that. If anyone is doing good,
they should be appreciated. And I'm pretty much sure that you have learned a lot of good things, and whatever we discuss, a lot of people will learn a lot of good things Mm. from that I as hope well. so. So thank you I so much. hope so. Thank you so much for Thank your you time. so It's much my for it's, this time, and thank you so much for having me on this interview, and for me to share my opinions and journey. I think it meant a lot to me. thank you मेरा so तो much, अभी man. फोकस हो गया है क्योंकि मेरा ईमान ये है कि देखें रिस्क जो है ना वो अल्लाह के हाथ में है तो जो मेरे नसीब का है वो तो मुझे मिल ही जाएगा बट इन द मीन टाइम बिजनेस के साथ साथ आई रियली वांट टू गिव बैक एंड आई वांट टू गिव बैक इन द फॉर्म के जो चैलेंजेस हमने देखे हैं जो गलतियां हमने की या जो चीजें हमने फेस की मे बी somebody learns from your story and then they don't have to repeat that so I I think think I think ये एक बड़ा important aspect है this is very important because that was the main idea when I started this. क्योंकि yeah uh, we all are doing things क्योंकि हम जब कर रहे होते हैं तो हमें पता नहीं होता, but you never know, one tip, one advice can be helpful for absolutely anyone. So absolutely why not take out just 5-10 minutes of yours? So बिल्कुल I'm pretty बिल्कुल much sure that a lot of people will learn from it, and I really wanted those all those women who are working from their home and also seeing their kids and then cooking and whatever you are saying. yeah I'm pretty much sure they're all doing that thing, but they can have a boost. Okay, fine, if Kana is doing it, that we can also do that. So thank you so much for your time. करना It's my पड़ता pleasure. है थैंक यू सो Yeah, मच I थैंक यू think वेरी but मच it's my pleasure to have you on the session. Thank you so much for your time. लाइकवाइज बहुत शुक्रिया